Is it audible to all? Yes, sir. Okay. ये क्या करेगी? ये नीचे ड्रॉर में मेरा एक रखा है। So सबसे पहले अपना अपना कैमरा स्टार्ट कर लो सभी। कैमरा स्टार्ट कीजिए। ओके। हरमन, प्रसन्न, हितांशु, इकांशा, मानसा, निशांत, शौर्य, वैदेही, भाव्य, धैर्य। Okay, fine. So today we are going to discuss about the previous chapter. Just हम लोग एक रिवीजन कर रहे होंगे अपने चैप्टर्स का जो ऑलरेडी आपने अटेम्प्ट किया होगा कहीं ना कहीं क्लासेस में। उन्हीं चैप्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एंड उसका रिवीजन करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो आई थिंक कि आप लोग को बेसिक्स क्लियर होंगी और जहां कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती है, आप मुझसे पूछेंगे कि इन सब चीजों में बेसिक्स क्या हैं। आई विल डिस्कस ऑल दी बेसिक थिंग्स। ओके, okay. So first chapter है that is called as a real number. So I will discuss all the basic things, जितने भी basic things हैं उन सब चीजों को मैं discuss कर रहा हूँ यहाँ पर। So we are going to start with the real number. So sir, what is actually the real number? Any idea? जिसको भी कुछ बोलना हो बोल सकते हैं। What is actually the real number? Sir, may I? Yes, बोलिए। Sir, real number is a combination of irrational and rational numbers. Okay, good, very good. So sir, we can divide the real number in two part. First one is rational number and the second one is irrational number. So anyone can let me know what is actually the rational number? Sir, may I? Yes. Sir, a rational number is a number which can be written in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. Okay, Ikansha, can you let me know about the irrational number? Yes, sir. Any The number- numbers which cannot be written in the form of P upon Q form are known as irrational numbers. Okay, sure. So कुछ numbers मैं लिख रहा हूँ, आप लोग में से फर्स्ट आंसर देना है सभी को कि it is rational or irrational. So I am writing here 1.1. It is rational or irrational? सर रैशनल Sir, rational है. upon We Q form में write लिख it as 10 by 11 by 10. We can write like this one. Na? So this is Yes, sir. yes a rational number. Okay. Now let's say I am using a symbol of bar. बार का मतलब होता है रिपीट करना, उस डिजिट का रिपीट करना। अगर मैं 2 1 के ऊपर बार लगा रहा हूँ इसका मतलब होगा कि सर 2 1 2 1 बार बार रिपीट हो जाएगा। इसे रिपीट कर रहे होंगे। सो आई एम मेंशनिंग हियर अ बार सिंबल एट 1. सो इट इज रेशनल और इरेशनल? It is irrational as it is non Sir, rational है. इट इज रेशनल नंबर। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा जो भी रिपीटिंग नंबर वाले केस होते हैं ऑल दीज आर रेशनल नंबर। सो कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार का सिंबल दिख गया आप डायरेक्टली बोलोगे दिस इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं आएगा। नाउ सर आई एम आस्किंग यू व्हाट इज रूट 2? इट इज रेशनल और इरेशनल? Sir, irrational. क्योंकि Very वो good. क्यू फॉर्म में नहीं होगा। अच्छा, ये p by q के फॉर्मेट में नहीं होगा इसलिए इरेशनल नंबर।
So if I will ask you what is actually a square root of 81, so what you will say? 9, sir. 9. Okay, so what it will be, rational or irrational? Sir, rational. Sir, 9 वेरी rational. गुड. सो upon 1 हमें over. ऐसा बिल्कुल भी मन में नहीं बिठाना है कि सर स्क्वायर रूट होगा तो इरेशनल होगा. फर्स्ट वी विल चेक दैट इट इज पॉसिबल टू सॉल्व फर्दर और नॉट. फर्दर सॉल्व करना पॉसिबल है, वी कैन राइट इट लाइक 9 एंड 9 इज अ रेशनल नंबर. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा हो जाता है कि सर स्क्वायर रूट देखा मैंने इरेशनल बोल दिया. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं कहेगा. वैसा टर्म्स जो नहीं लिख पाएंगे हम उसे बोलेंगे कि सर इरेशनल नंबर है. नाउ we are going to discuss one lemma that is very important, that is called as Euclid division lemma. Now you can observe that sir, we are taking some integer and that integer are positive integer. Let's say integers are a and b. Then this Euclid division lemma states that there will exist some unique integers q and r such that this relation will follow. A is equal to bq plus r and r की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर b तक है. मैं कुछ एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ. Let's say sir, I am working with 4 and 6. So we can write 6 is equal to 1 into 4 plus 2. Can we write like this one? Yes, sir. So Yes, let's say this is the number A and this is the number B. So sir यहाँ पर A है और यहाँ पे ये B लिखे हुए हैं. So you can observe कि sir Q is equal to 1 and R is equal to 2. हम लोगों ने ये चीज पढ़ा कि जो R की वैल्यू है, R की जो वैल्यू है वो R की वैल्यूज B से कम होनी चाहिए. B की वैल्यूज यहाँ पर कितनी है? 4 है. तो R की वैल्यूज मुझे यहाँ पर कितनी मिल रही है? देख लीजिए 2 मिल रही है. सो R की वैल्यूज B से ऑलवेज कम मिलेगी और वो इंटीजर वैल्यू भी होगी. इतना भी हमें ध्यान में रखना है. So we have to use this type of combinations कि सर हमें इस तरीके से लिखना पॉसिबल हो सके. Now, what are the use of Euclid division lemma? Anyone? What is the use of Euclid division lemma? Anyone? क्यों यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को? To make the division better. I mean, the way no. better, Easy. easier. No. Have you ever calculated HCF or LCM by Euclid division lemma? Yes, sir. Highest common factor or least common multiple, like the terms you have calculated ever? Yes, sir. हाँ, तो क्या उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं? Yes, sir. उससे easy हो जाता है HCF निकालना. हाँ, HCF निकालना इजी हो जाता है. So first of all, let's say the numbers are A and B and we are going to find HCF, highest common factor between A and B. So first we will write the term A in the combination of BQ plus R, where R is the values in between 0 to B. B is not included here. Then after, again we will use to find further. See, there is a term B, there is a term R, there is a term A. So देखो कि यहाँ पर अगर मुझे C and D का निकालने के लिए बोला तो पहले C को मैंने कनेक्शन में लिखा. अगर R की वैल्यूज मैंने 0 बोली, मतलब कि यहाँ पर जो R निकल रहा है वो R इज इक्वल टू 0 निकल कर आए. जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सर अगर 4 and 12 की मैं बात करूँ, वी कैन राइट 12 इज इक्वल टू 3 into 4 plus 0. Can we write like this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So we are getting what? R is equal to 0. 0. अगर मुझे R की वैल्यू 0 नहीं मिलती है, then we will again use Euclid division lemma between D and R. D कहाँ पर है सर? जो यहाँ पर आपको छोटा वाला नंबर दिख रहा था, that is actually the D number. And D and R के बीच में हम Euclid division lemma को फिर से हम यूज करना स्टार्ट करेंगे. And in that way we have to calculate the highest common factor. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर करूं तो वो बेटर रहेगा. ठीक है. सो सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व द अनदर क्वेश्चन. ओके, सो जस्ट लेट मी नो. सिली क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताना होगा यहाँ पर विच वन इज द बिगर वन. 225. 225. We will 25. write 225 is equal to we will write here 135. Let's multiply 135 with 2. What you will get? 270.
Yes, Yes, sir. but this number is greater than 225. तो सर हम Yes, sir. We will 135 write प्लस 1 90 into करेंगे 1 into 135 प्लस कितनी ऐड करना होगा 90 90 सर 90। ओके, सो सर यहाँ पर r की वैल्यू आ गई है और r की वैल्यू जो है वो 90 है। ये है a और मैं इसे q बोलूंगा और देयर इज अ नंबर b 135 प्लस r। सो a इज इक्वल टू qb प्लस r या bq प्लस r, आप ऐसा लिख सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन 135 फैक्टर। तो नाउ अब हम 135 लोग किसके बीच में यूज करेंगे, ध्यान 135 में रखिएगा, r जो निकल कर आएगा उसका यूज होगा और स्मॉलेस्ट नंबर जो इसमें होंगे उनका यूज होगा। ओके, सो सर वी विल राइट 135 हियर एंड वी विल राइट r की वैल्यू जो आ रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। सर r को अगर मैं 1 से मल्टीपल करूं तो 90 एंड बताइए यहाँ पर कितने नंबर्स लिखने होंगे। 45. 45, वेरी गुड सर, 45 लिख लिया हमने। नाउ सर कैन वी राइट 90 इज इक्वल टू 2 into 45 प्लस प्लस 0 r की वैल्यू जो है प्लस 0 लिख लो। सो वी विल से कि सर यहाँ पर मुझे r की वैल्यू 0 मिल गया, r की वैल्यू 0 मिल गया। सो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? Sir, 45. 45. 45. So we will say कि sir this is the answer 45 we got as the answer for highest common factor between 135 and 225. Is it clear to all? यस सर Yes, Okay. sir. Yes, sir. Can you let me know after solving the question number 2, try करके खुद से solve करके बता सकते हो कितने आंसर आ रहे हैं? Sir, आ गया हाँ बोलिए, बोलिए क्या आंसर आया आपका? 196. 196। Yes, sir. ओके, सेम आंसर आ रहा है सभी का या डिफरेंट है? सर और एक किसी सेकंड हाँ ट्राई कीजिए। सर आ ही गया एक सेकंड Okay, so bigger number is 38220 is equal to, I am writing here 196. So कितने से मल्टीपल करूं 196 को? Sir, 1 से. 1 से मल्टीपल करें। ओके, और कोई? सर 196 ही आ रहा है सर ठीक है, 196 आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन किससे करूं? 3822 सर जो है 195 ओके 195 से मल्टीपल कर लें। जिनको नहीं पता चला वो ये चीज समझिए कि अगर मैं 1 से मल्टीपल करता हूं तो 196 आता है एंड दिस 196 इज फार लेस देन दिस नंबर। ओके, so let's multiply with another number, just put double zero here. So this number is again far smaller than this bigger number 38220. So sir मुझे 100 से भी ज्यादा मल्टीपल करना है। Let's multiply with 200. What you are getting here? So अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल कर दूं, 196 को 2 से मल्टीपल कर दूं, तो सर 196 को 2 से मल्टीपल करने में 6 2 12 एंड 19 2 38, सो दिस इज 392 and we are substituting double zero here, so this number is greater than this number. So sir 200 से कम होगा। और इसी तरीके से 1 by 1 जब हम नंबर्स को चेक कर रहे हैं, now you can multiply 196 with 195। मल्टीपल करेंगे 6 5 30, so 0 is there, 3 is there,
9 5s are 45, 45 plus 3, that is 48, 4 is there, and 5 1s are 5, 5 and 4, so this is 9. अब इसी तरीके से 9 से मल्टीपल कीजिए, 1 से मल्टीपल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है ये क्वांटिटी फाइनल। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए आप लोग को। सर कितना आ रहा पता है? 382250 आ रहा है। 3822 0 यही आ रहा है सर। रिपीट करना, 38220। Yes, sir. Okay, so we are getting remainder as here the terms will be 0 na directly. Yes, so Yes, sir. definitely as this number is 0, r की वैल्यू 0 हो गई, so what we will say कि सर यहाँ पर जो numbers आ गया या यहाँ पर जो numbers आ गया, इन दोनों में से कौन सा HCF होगा? जो स्मॉलर नंबर होंगे, स्मॉलर नंबर होंगे, यहाँ के है स्मॉलर नंबर। ओके, स्मॉलर नंबर कौन से हैं? 196, तो ये क्या कहलाएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये मुझे फर्स्ट स्टेप में क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर के यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है, इसलिए हमें मिल रहा है। सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, शायद उसमें कुछ कैलकुलेशन सर 3 का आ गया मेरा। क्या आया? 3 का आंसर 51 आया। ओके, लेट मी चेक। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। तो सर अभी क्या करेंगे पता है सर? 867 is equal to 255 into 3 plus 102. 3 plus 255 into 3 plus 102. 102. So now we have to use, this is R is equal to 102 and this is B is equal to 255. So we will write, sir, 255 is equal to 255 is equal to 102 102 multiple with 2. 2 So plus this will become 51. 204, na? And plus 51 is there. 51, yes sir. Okay, so this quantity is B here and this quantity is R here. So B and R के बीच में हम फिर से relation लेकर आएंगे. This is 102 is equal to 2 times 51. So 2 into 51 is 102. So remainder here is 0. R की value 0 आ गई. जैसे ही R की value 0 आ गई, we will look for the smaller number, that is 51 here. Okay, so 51 जो smaller number यहाँ पर दिख रहा है, this will be the HCF. और ये HCF जो निकल कर आया वो 867 एंड 255 का है। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सभी से सॉल्व? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। वो जो नहीं पहले वाले सर थे, क्या नाम? हाँ या सर। हाँ, सर। तो उनने ना वो डिवीजन वाली मेथड कराई थी, तो अगर हम इन दोनों में से जो सही लगे वो कर सकते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है ना कि किसी एक के मार्क्स मिलेंगे एक के नहीं? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो क्या लिखा हुआ है? है ना? हाँ। अगर ये लिखा हुआ होगा और आप इस मेथड से नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ लिखा हुआ रहेगा फाइंड HCF, है ना, अगर सिर्फ लिखा हुआ रहेगा फाइंड HCF, देन यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। ओके सर। आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देन यू हैव टू यूज दिस वन। ओके ओके सर। नाउ देखो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं। हाँ बोलिए सर। डिवीजन करने के बाद बाजू में लिख सकते हैं A is equal to BQ plus R, और फिर जो भी डिवीजन। हाँ तो लिख सकते हैं ना, वो आप अपना जितना भी उसको अरेंजमेंट। देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं जितना ज्यादा मेकअप कर लूं, हो सकता है मैं बहुत ज्यादा अच्छा दिखना लगूं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी मेकअप कर लोगे तो समटाइम क्या खराब दिखना स्टार्ट हो जाता है ना पर्सन। तो हम इतनी भी साइड में चीजें ना लिख दें जिससे कि मेरा पूरा का पूरा पेज फिलअप दिखना स्टार्ट हो जाए। मैं कुछ चीजें लिखूंगा, ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरी चीजें लिखना स्टार्ट कर। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि सर एक एग्जांपल दिया हुआ है और दे आर आस्किंग फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आइदर 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer. How to solve this type of question? Okay, तो सबसे पहले आपको एक सिंपल सा फंडामेंटल ध्यान में रखना है कि सर हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ा है एंड दैट इज a is equal to bq plus r. ओके, a is equal to bq plus r. तो सर यहाँ पर मुझे a कोई नंबर है जो
अपने मन में सोच लेना है। Q जो है वो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर Q है। कैन यू लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम बाय रीडिंग दीज टू नंबर, 2. है ना? सो सर B की वैल्यूज 2 है, B की वैल्यूज 2 है। सो वी विल जस्ट से लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड B इज इक्वल टू 2। क्यों मैंने 2 एज्यूम किया? क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है वो 2Q एंड 2Q प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। देन वी विल से बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इज इक्वल टू BQ प्लस R, B की वैल्यू 2, इट मींस A इज इक्वल टू 2Q प्लस R। मैंने ऊपर लिखा A इज इक्वल टू BQ प्लस R इज द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, बट सर मैंने B को 2 एज्यूम किया था, तो मैंने यहाँ पर B को 2 पुट कर लिया। अब यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने ये चीज पढ़ा है कि जो R की वैल्यू होती है सर, दैट इज ऑलवेज लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो B की वैल्यूज हमने तो 2 एज्यूम की थी, तो मैं यहाँ पर B की वैल्यूज 2 लिख लूंगा। अब आप बता सकते हो कि R अगर इंटीजर वैल्यू है, देन R की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 1. एक तो सर 0, स्मॉलर से स्टार्ट कीजिए, 0 एंड 1, 0 1 0 एंड 1। सो वी विल से सर देयर आर 2 नंबर। कौन कौन से नंबर होंगे? R की वैल्यूज आपको इस वाले रिलेशन में पुट कर लेना है, इस वाले रिलेशन में पुट कर लेना है R की वैल्यू। अगर R की वैल्यू 0 पुट करते हो तो A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2Q। एंड फिर अगर R की वैल्यूज 1 पुट करते हो तो A की वैल्यूज क्या मिलेगा? 2Q प्लस 1। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो इवन नंबर का डिफिनीशन क्या कहता है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इवन नंबर? can be divisible by 2. ओके, सो इज 2Q डिविजिबल बाय 2? क्या ये 2 से डिविजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Definitely we can write it as 2 into Q. So definitely this number will be divisible by 2. 2 से मैं divide कर सकता हूँ. So Yes. we will say as 2Q is divisible by 2, hence A is an even number. A जो है वो even number. एक possibility तो ये हो गया. दूसरी possibility ये वाली है. तो second possibility, अगर 2Q कोई even number हो तो किसी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो नंबर क्या बनेगा? Odd. ऑड नंबर बन जाएगा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो सर वी विल से दैट एज 2Q इज इवन नंबर, 2Q प्लस 1 इज ऑड नंबर, 2Q प्लस 1 इज ऑड नंबर। क्लियर हुआ सभी को? बोलिए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो जस्ट आपको यहाँ पर एक ही चीज बतानी है, कोई स्टेटमेंट रीड नहीं करेगा यहाँ पे कुछ भी, ठीक है? आप इन नंबर को देखकर मुझे बता दो कि आपको B की वैल्यूज क्या सिलेक्ट करनी है। 4, sir. वेरी गुड सर, B की वैल्यूज मुझे 4 सेलेक्ट कर लेनी है। अगर B की वैल्यूज 4 है तो R की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3. 0 1 2 3 0 1 2 3। तो सर जो नंबर्स निकल कर आएंगे वो नंबर्स कुछ ऐसे निकल कर आएंगे, देखो 4Q R इज इक्वल टू 0 के लिए, R इज इक्वल टू 1 के लिए 4Q प्लस 1, R इज इक्वल टू 2 के लिए 4Q प्लस 2, R इज इक्वल टू 3 के लिए 4Q प्लस 3। ओके, 4Q इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट? Yes, sir. As it is Yes, even sir. number. It is even number divisible by 2. And this one? no No, sir. As it No. is odd. This one? yes Yes, sir. Yes, we can write 4Q plus 2 is equal to 2 times 2Q plus 1 plus 1. So we Yes, can say this number 4Q plus 2 is divisible by 2. तो सर ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है और ये वाले नंबर ऑड है। odd. तो एक्चुअली दे आर सेइंग टू प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 4Q plus 1 और 4Q plus 3। देखो सर 4Q plus 1 ऑड है एंड 4Q plus 3 भी
ऑड हैं। ऑड तो है। ऐसे क्वेश्चंस काफी आसानी से स्टेटमेंट से सॉल्व होते हैं, जस्ट यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को लिखकर सॉल्व होता है। सो एक बार हम इन लैंग्वेज को लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप के कोई भी सम को मैं आराम से कर सकता हूँ। मुझे ये पता होना चाहिए कि सर 2 से डिविजिबल कब होता है, अगर 2 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं या ऑड होते हैं। मैं डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ अब मैं आपसे पूछूंगा कि सर यहाँ पे बी की वैल्यूज क्या लेनी है। 6 सर 6। वेरी गुड सर, बी की वैल्यू 6 लेनी है। ओके, तो आर की वैल्यूज क्या क्या होगी। 0 1 2 3 0 4 1 2 3 4 5 वेरी गुड, 0 1 2 3 4 5। सो नंबर्स जो हैं दैट नंबर्स विल बी सर कैन वी से 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 एंड 6 क्यूब, बस यहाँ तक ही होंगे। ओके, 6 क्यूब प्लस 5 तक हो गए। सो इनमें से मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर बताने। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? क्या ये Yes, 2 से sir. डिविजिबल है? यस। Yes, सो sir. सर दिस इज इवन, दिस इज Odd. ऑड। Odd, sir. 2 तो छूट गया, इसमें एक नंबर छूट गया, मिस हो रहा है एक। इसके बाद में होना चाहिए ना 6 क्यूब प्लस 2, है ना। Yes, sir. ओके, तो सर ये वाले नंबर ऑड हो गए, ये वाले नंबर इवन हो जाएंगे, फिर से ये Yes, sir. ऑड, इवन, ऑड। Even. Odd. हमने ऑब्जर्व किया कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 ये सब ऑड के फॉर्मेट में होंगे। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। किसी को भी कुछ लग रहा हो कि सर स्पीड हो रहा है या मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछेंगे, आई विल रिपीट ऑल द कॉन्सेप्ट। सर इसका राइटिंग में स्टेप वाइज वो कैसे लिखेंगे, मतलब स्टेटमेंट भी लिखेंगे। स्टेटमेंट देखो ना, ये जो है ना पीपीटी, ये पीपीटी में आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट लिखा हूं ना, लेट अस स्टार्ट विद टेकिंग ए वेयर ए इज पॉजिटिव ऑड नंबर्स, है ना। वी अप्लाइड द डिवीजन एल्गोरिथम विथ ए इज इक्वल विथ ए एंड बी इज इक्वल टू 4। तो अगर प्रीवियस आगे वाला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर क्या लिखोगे आप, बी इज इक्वल टू 6. है ना। तो जब आप यहाँ पर 6 लिखोगे तो आर की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जाओगे, 5 तक। 0 से लेकर 5 तक, इट मींस लेस देन 6, है ना। लेस देन 6, लेस देन बी लिखते हैं ना, आर की वैल्यूज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो Yes, यहाँ पर जो sir. वैल्यूज आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ जो नंबर आएंगे 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5 ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये वाला जो स्लाइड है इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है बिल्कुल मुझे वैसा लैंग्वेज लिख लेना है। थोड़ी बहुत चल जाएगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए क्योंकि सर हम कॉपी पेस्ट तो कर नहीं रहे, है ना। तो अपना लैंग्वेज भी कुछ होता है कि सर लेट अस स्टार्ट की जगह पर मैं ऐसा लिख लूं, लेट एज्यूम टेकिंग ए, है ना। तो उस तरीके से थोड़ी चेंजिंग आप कर सकते हो। नाउ ये सभी क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जस्ट आपको मैं बता दूं कि सर ऐसा क्वेश्चन करना है तो मुझे बी की वैल्यूज क्या लेनी है, बोलिए। सर 3. 3 बस, है ना, सभी को आता है, समझ में आ रहा है सभी। नाउ ये मेथड पता है किसी को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको बोलते हैं हम लोग sir. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। Yes, sir. हम लोगों को थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज एक्चुअली द प्राइम नंबर। ओके, सो कैन यू लेट मी नो व्हाट इज प्राइम नंबर। The numbers whose divisible are not there, like we have 4. 4 is divisible by 2. So it is not Okay. the prime number, it is a composite number. It is a composite, a number that is divisible by more than two numbers. We will say more than two number. We will say that is a composite number. Prime number वो number होते हैं that is divisible by either one or itself. It is Prime only number either one से divisible होगा या फिर itself से divisible होगा. So is there any even number that is prime number? Sir, 2. Okay, 2 is the only even number that is a prime number. 2 के अलावा कोई भी even number जो होगा वो prime number नहीं होगा. Okay, Yes. so can we say 1 is prime number? No, sir, 1 is neither prime nor composite.
Okay, neither prime nor composite. Why not composite? Natural. नेचुरल नंबर Natural तो भैया number. 7 भी है, तो 7 भी एक नेचुरल नंबर है। सर नेचुरल नंबर हम कंपोजिट इसीलिए नहीं क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं आता, और प्राइम इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, बट Okay. नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। Okay, so prime numbers are 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13. 13, 17, 19 up to so. These are known prime number. बहुत सारे और भी numbers हैं, आगे जाओगे 23 भी लिख सकते हो, 29 भी लिख सकते हो, not an issue. So this is the smallest prime number. This is the only even prime number. इसके अलावा कोई दूसरा even prime number नहीं है। ओके तो ऐसे नंबर्स के कोई भी नंबर ले लीजिए, आपके मन में जो भी नंबर चल रहा हो वो नंबर ले लीजिए, मैं उन नंबर को इन नंबर के फैक्टराइजेशन में लिखकर बता सकता हूं। कोई भी नंबर लिख लीजिए। तो लेट्स से कि सर मेरे मन में चल रहा है कि मैं सर 104 की मैं बात करूं। ओके सो वी विल स्टार्ट मेकिंग डिवीजन ऑफ 104 विथ 2। इज इट डिविजिबल बाय 2? यस, सो वी विल राइट 52 here. Is it divisible by 2? Yes, we can write it as 26. Again divisible by 2? Yes, we will write 13. Is 13 divisible by any number? Sir, this is No, sir, right, 13 divide करेंगे. divisible by only 13. So we can write 104 as 2 raised to 3 into 13 raised to 1. So this is called as prime factorization. हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। 2 and 13 आर प्राइम नंबर्स। ओके तो यहाँ पर बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज यूनिक। एक ही होंगे, एक के अलावा दूसरा पॉसिबल नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर ऑफ फैक्टर का मतलब हुआ कि कोई पर्सन अगर 13 raised to 1 into 2 raised to 3 लिख दे तो आप इसको गलत नहीं बोलोगे, बोथ आर सेम, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि सर ए बी और बी ए दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या बोलते हैं, सेम बोलते हैं, है ना? Yes, sir. Okay, Yes, sir. using prime factorization we will learn to find the HCF. जब HCF फाइंड आउट होगा तो हम लोग LCM फाइंड आउट करना सीखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल लर्न टू फाइंड द LCM एंड HCM यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर के थ्रू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर लिखना है। मैं इनमें से एक क्वेश्चंस करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे। सो लेट्स से कि सर मैं 3825 को कैरी कर लेता हूँ, ठीक है? मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3825 इज इट डिविजिबल बाय 2? No. No, sir. नो सर। क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? Yes, sir, क्योंकि उसका सम 18 आ रहा है. ओके अगर मैं इनके डिजिट का सम करूं तो सर 8 + 3 दैट इज 11, 11 + 2 इज 13 एंड 13 + 5 इज 18। अगर सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो तो आप बोलोगे कि कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ओके सो जस्ट आई एम सेइंग कि सर 3 से डिविजिबल कर लेते हैं। सो देयर इज 1, 3 2 जा, 3 7 जा एंड 3 5 जा, ये आएगा। Yes, sir. Okay, now is this number divisible by again 3? Yes, sir. Yes, So sir. I will write here 3, 4 3s are 12 and 25 3s are 75. Again, is it divisible by 3? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. No, sir, no, sir, no, sir. No, na? 4 No, plus sir. 2 is 6, 6 plus 5 is 11. नहीं sir, 11 नहीं। is not divisible by 3. So, sir 3 से divisible तो नहीं है, 5 से है Five. क्या? अगर Yes, किसी sir. भी Yes, sir. नंबर के Yes. लास्ट में 5 या 85. 0 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 या 0 हो, then that number must be divisible by 5. 5. वो नंबर 5 से divisible होना ही है। So now I am writing here 5, 85. 8 is here and 5 is here. Yes, sir. Okay, 5 Sir, से again divisible 5. होगा 5 होगा 17 और Okay. 17 So we can write 17 3825 is equal to 3 square 3 square into 5 5 square square into into 17. 17. This is called as expression of the numbers in as a product of its prime factor. हमने इस नंबर को एक्सप्रेस किया है as a product of its prime factor. So can you do this same type of calculation
for 156? Yes, sir. तो आप 156 का करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस नंबर पे 2 पे पावर कितना आया है। सर आ गया। हाँ, 2 Sir, पे पावर कितना square. है? स्क्वायर square multiply by 3 multiply by multiply 13. by 13 मल्टीप्लाई बाई 13। 13 इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? No, sir. Sir. जस्ट सिंपल 2 से डिविजिबल होगा सर, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है। Okay, so Yes, this yes. is divisible by 2. So we will write 7 here and 8 here. Again, it is divisible by 2. So this is 39. This is divisible by 3. We will write 13 here. So 2 square, 3 and 13. Okay, so this will be the answer. And on this, using the same concept, we can solve all these questions. This one, or this one. Okay. Now, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, HCF of A, B into LCM of A, B is equal to product of A and B. Product of A and B. Okay. So sir, इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को रिलेट कर सकता हूँ कि जब भी HCF दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हुआ हो, तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड आउट द LCM. We can just write list common multiple of the numbers A, B is equal to highest product of the number upon highest common factor between A and B. Between A and B. Can we write like this one? Yes, sir. So आप इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये यूज में लेकर आएंगे। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, sir, find LCM and HCF of the following pair of integer. Verify LCM into HCF is equal to product of two numbers. हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दिए हुए दो नंबर का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा आपको। तो सर मैं मल्टीपल बोला है, क्या यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला है क्या? नो सर। नो। No, अगर sir. यूक्लिड डिवीजन लेमा ना बोला है तो मुझे क्या करना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लूं? तो सर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के लिए प्राइम Yes. फैक्टराइजेशन अगर यूज करता हूं तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 into 13. 13. ओके, एंड 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 13. 7 into 13. So what will be the highest common factor? 13. 13 सर इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा, इन दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा उस पे जो लिस्ट पावर होंगे दैट विल बी दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर 2 तो कॉमन है नहीं, 7 तो कॉमन है नहीं, 13 इज ओनली कॉमन। यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है। सो वी विल से कि 13 रेज टू पावर 1, इट मींस एग्जैक्टली 13 इज द HCF। HCF 13 ही है। ओके, थोड़ी देर के लिए जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लेट्स से नंबर कुछ इस तरीके से निकल कर आते हैं। मैं यहाँ पर लिखता सर 13 पे पावर 2 and 13 पे पावर 3, then what you will say about the HCF? 13 raised to 5. HCF सर तो वो तो 13 ही रहेगा। ये नंबर A है और ये नंबर B है, इन दोनों का मैंने HCF फाइंड आउट करना है। So what is the highest common factor? So 13 raised to 3. 13 3 नहीं, अब मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले आप कॉमन नंबर देखोगे। विच नंबर इज कॉमन? 13. 13. 13। ओके, इन दोनों की डिग्री देख लीजिए। एक्सपोनेंट जो है, कम वाला एक्सपोनेंट कहाँ पे दिख रहा है? 13 ए square. वाले में 13 वाले स्क्वायर। सो वी विल से 13 स्क्वायर इज द HCF। So जो लिस्ट 26. 26 13 का स्क्वायर बोल रहे हैं ना? Yes, sir. 13 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 13 into 13। Half. 2 into 13 करेंगे ना बच्चे, तब जाकर ये 26 होगा। 13 स्क्वायर का मतलब हुआ 13 into 13। 13 अगर Sorry. क्यूब बोलेंगे तो 13 into 13 into 13, इस तरीके की चीजें होती है ना।
सो सिंपली सर हम लोगों ने अभी इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना सीखा और HCF जो निकल कर आ रहा है वो 30 निकल आ रहा है। नाउ कैन यू लेट मी नो व्हाट इज द LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितने हैं? देखो मैं multiply by LCM 7 Sir. multiply by 13. देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। 26 है, इसको मैंने लिखा था 2 into 13। गुड। 91 को लिखा था मैंने 7 into 13। ठीक है। सो सबसे पहले इसमें से जितने भी अवेलेबल नंबर्स है ना उन सबको लिखना स्टार्ट कर लो। सर एक नंबर तो 2 है, एक नंबर 7 भी है और एक 13. नंबर 13 भी है। 2 पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? सर 2 ही है, वो तो 2 raised to 1। 7 पे हाईएस्ट पावर 7 raised to 1, 13 पे हाईएस्ट पावर 13 raised to 1। इन सभी नंबर्स को मल्टीपल कर लीजिए। सर इन सभी नंबर्स को मल्टीपल करने के बाद 182. आएगा 182। दैट विल बी द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है। अब मुझे वेरीफाई भी करना है। हमें वेरीफाई कैसे करना है? LCM इंटू HCF की जो वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होती है। सो सर HCF है 13, LCM है 182। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 26 इंटू 91 के इक्वल हैं? यस सर है, यस है सर ना? है। कैन वी राइट 91 इज इक्वल टू 13 इंटू 7, है ना? और Yes. अगर 26 को 7 से मल्टीपल कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? ये 182, है ना? सर इंटू सर 13। आंसर आ रहा है सर, आंसर 2366। हाँ, तो दोनों तरफ से 2366 मिलेंगे, यस सर। है ना? सो वी आर सेइंग कि वेरीफाइड। हमें वेरीफाई करने की बात कर रहे थे, वेरीफाई हो चुका है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो इट इज गोइंग टू बी व्हाट इज द HCF। आपको HCF फाइंड आउट करना है। सेकेंड वन आपको इसके लिए LCM फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर थर्ड वन आपको वेरीफाई करना है। ये 3 टास्क करने, जल्दी से कंप्लीट करना। ओके Okay, sir. सर हेलो, हेलो सर, HCF 2 आ रहा है। Sir हो गया। HCF 1 HCF 2 HCF 2 ओके। और किसी का आंसर कोई चेंज है? Sir मेरा। क्या आंसर आया? और सर LCM है 23460। 23460. ओके, सो सर लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट ध्यान देना है, यहाँ पर 92 है। तो सर 92 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 46 23 का पॉसिबल नहीं होगा। सो वी विल राइट दिस वन एज 2 स्क्वायर इंटू 23। सर 510 है, एक नंबर है 510। सो मैं यहाँ पर 510 लिख लेता हूँ। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड किया सर 2 5 5 सर 5 अब से 3 डिवाइड से करेंगे। 3 से करें। यस सर। ओके 3 से करते हैं डिवाइड। 3 से डिवाइड करेंगे 85 Sir 5 जा। 5 जा 5 70 70। So we are 70 getting बनता। 2 3 5 70 70। Now which one is the common number? 2. 2 तो HCF इन दोनों में से 2 पे लिस्ट पावर कहाँ पे दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? लिस्ट पावर 1 ना? 1 सर। तो वी विल से कि सर HCF जो आया है वो 2 निकल कर आया। देयर इज नथिंग कॉमन अदर देन दिस वन। इसके अलावा और भी कोई टर्म कॉमन नहीं है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल।
सो सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए मैं सारे नंबर्स को एक बार लिख लूंगा। सर एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, अनदर 5, इज 5, अनदर इज 17. 17, अनदर इज 23। अब 2 Sir. पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? 2. 2 2, सो आई विल पुट हियर 2। 3 पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 1। 1. 5 पे भी 1, 17 पे भी 1 एंड 23 पे भी 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती सर, जस्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए मैंने 1 लिख रहा था। सो ये जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, ये जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा, डेट विल बी दी एलसीएम। क्लियर हुआ? सर प्रोडक्ट क्या आ रहा है पता है? क्या आ रहा है? 2, 3, हाँ 4, 6, 0. 2 3 4 6 0। 0. ओके, तो इतना लंबा प्रोडक्ट आ रहा है। आप इन दोनों नंबर को भी प्रोडक्ट करके देख लो कितना आ रहा है। सर ये मेथड के अलावा हम ये कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हाँ कर सकते हैं, उसमें भी कोई LCM प्रॉब्लम नहीं है। सर एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम कुछ इस तरीके से एलसीएम और के लिए सर करते हैं, जैसे आंसर क्या आ रहा है 92 पता है? 510 लिखना हाँ। हो ना, तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देयर आर वेरियस मेथड। सर 92 है, 510 है, मैं इसको एक साथ ही एलसीएम निकाल सकता हूँ। लेकिन है क्या कि अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा तो आप ये वाला कैलकुलेशन दिखाओगे तो वो ऑड लगेगा, जबकि आप इसको 2 इंटू 3 इंटू ऐसा लिखते हो। तो हमारे चैप्टर में है ये चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। हमारे चैप्टर में टॉपिक का नाम है। क्या ऐसा कोई टॉपिक है? कोई भी एग्जाम्पल ऐसे बुक में ऐसे कोई एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है? नो सर। नहीं है। तो फिर सर तो सम टाइम रॉन्ग। क्या होता है कि जब हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें कुछ फैकल्टी इन चीजों को नहीं मानते हैं कि नहीं मैं तो बुक वाला मेथड ही यूज करूंगा, सीबीएसई है ना। ओके नाउ सर यहाँ पर क्या बोला ये चीज समझना। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम फॉलोइंग इंटीजर्स अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 नंबर्स हैं। मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन का वर्ड यूज किया है। अब सोचो कि अगर आप बोलोगे कि सर मैं 12 15 एंड 21 लिखकर सॉल्व करूं ऐसे, तो क्या ये सही कहलाएगा? नो सर। नहीं, वी हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अगर मैं 12 को लिखूंगा तो 12 को कैसे लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। सर 2 6 2 3, सो वी विल राइट 2 स्क्वायर इंटू 3। एक नंबर है 15, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। एक नंबर है 21, 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। So which one is the common number? Common number कौन सा है? कौन सा नंबर सभी में कॉमन दिख रहा है आपको? सर 3. 3। So first I will write 3 here. 3 के अलावा और भी कोई नंबर कॉमन है क्या? नो नो सर। सर। नहीं। अब इन सब पे जो पावर है उन सब पावर को ऑब्जर्व कीजिए। सर सभी पे पावर तो 1 ही है, तो सर यहाँ पे पावर 1 ही आएगा। अब इससे कम तो पॉसिबल है नहीं। सो HCF इज 3 है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो LCM निकालने के लिए सर, LCM निकालने के लिए मैं जितने भी नंबर है उन सबको पहले लिख लूंगा। सो 2 3 5 एंड 7। जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट मी नो 2 पे हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है? 2 पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 1. 1 या 2? 2 सर 2। 2. यहाँ सर पर देखो ना, 12 में 2 पे पावर 2 दिख रहे हैं, है ना। तो 2 मैंने पुट किया। अब इन सभी जगह पे 3 पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 1। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो इन सभी पे पावर जो है वो 1 1 1 है। दिस मल्टीप्लीकेशन विल गिव द LCM। इट इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर. सर आंसर 3780 आ रहा है। 3780 आ रहा है। ओके, सर मेरा आंसर तो 420 आ रहा है। अच्छा सबका अलग अलग आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ भैया? आपने क्या फाइंड आउट किया? एलसीएम फाइंड आउट करना है ना सर।
हाँ, तो एलसीएम कितने आए हैं? वही 3780 2780, 3 2783. 3780 मैंने आपको सर। कैमरा में दिखाया हुआ है। जस्ट लेट मी चेक। कैमरा के लिए मुझे पीपीटी को रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मैं उस चीज को नहीं चाह रहा था। जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। सर 12 मेरा है, एलसीएम तो कुछ और ही आ रहा है सर। ठीक है मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मैं सर इसलिए मैं सॉल्व कर लेता 420 हूँ, आ रहा है। ठीक है मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो सर 2 स्क्वायर सर इंटू 3, 420 सही है, ठीक मेरा है भी मैं वही सॉल्व है। कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, जिनका भी प्रॉब्लम होगा उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। सर 21 है, मैं 3 इंटू 7 ओके लिख सर। रहा था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल कर आ रहे हाँ। थे दैट इज 3 ओनली। एलसीएम जब लिख रहे थे हम लोग, तो एलसीएम के लिए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो सर 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 इंटू 5 इंटू 7। सर 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 दैट इज 420, 420 है ना? तो 420 आना चाहिए, देख लो। सर मेरा राइट है 420। हाँ तो 420 राइट है ना एलसीएम, ओके सर। सर है ना? मैंने दिया था 420। सर 420 है। जिनका भी चेंज हो रहा होगा वो अपने आंसर को करेक्ट कर लेंगे, नॉट एन इशू। समटाइम मिस्टेक्स होते हैं, इसके लिए बहुत को ये नहीं लेना है कि सर मेरे से गलती हो गई या फिर उससे गलती हो गई, नॉट एन इशू, होते हैं ये सब चीजें, है ना? लर्निंग है अपनी। देयर आर टू नंबर्स 306 and 657. They are saying that HCF of these numbers are 9. Then they are asking about find the LCM. So actually what we will use? HCF into LCM is equal to product of two numbers. वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ऐसे वाले केस में जब भी मुझसे कोई एलसीएम पूछेगा, मैं एलसीएम ऑफ नंबर ए कॉमा बी वी विल से a इंटू बी अपॉन HCF ऑफ a कॉमा बी। तो सर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है 306 and 657 का। तो मैं लिखूंगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF दिया हुआ है सर, HCF 9 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 9 पुट कर लिया। नाउ वी कैन मेक द डिवीजन, हम डिवीजन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सर आंसर 22338 आएगा शायद। ओके, सौर्य समझ में आ रहे हैं? ओके गुड। इकांशा, इकांशा, Yes, sir. ओके क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Okay, good. Now, check whether 6 raised to n can end with digit 0 for any natural number n. मुझे ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैंने पूछा इसकी जगह पे 2 raised to n लिखा हुआ हो सकता है, या 3 raised to n लिखा हुआ हो सकते हैं, 4 raised to n हो सकते हैं, 5 raised to n हो सकते हैं, 6 raised to n हो सकते हैं, 7 raised to n हो सकते हैं, 8 raised to n हो सकते हैं, 9 raised to n हो सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। So they can ask this numbers raised to n can end with 0 for any natural number n or not. मुझे ऐसा चेक करना है। ओके, तो सर सबसे पहले तो मैं उन डिजिट को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करूं जिसके लास्ट डिजिट में 0 अवेलेबल हो। सो लेट्स से सर स्मॉलेस्ट वाला ले लेते हैं 10। सो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10? 2:1 into 5:1. हाँ, 2:1 and 5:1. This is the prime factorization. Okay, let's say there is another number that is 20. So prime factorization will be 2 square into 5. 5:1. अगर मैं 30 लिखूं तो 2 into 3 into 5. सर मुझे 0 तो तभी मिलेगा जब 2 into 5 अवेलेबल हो, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी अवेलेबल हो एंड 5 भी अवेलेबल हो, 2 भी अवेलेबल हो एंड
5 भी अवेलेबल हो। तो आप मुझे बताएंगे कि 6n में क्या मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या मुझे 2 and 5 दोनों मिलेगा? व्हाट इज नहीं द प्राइम मिलेगा। फैक्टराइजेशन ऑफ 6? सर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 and 3. इज देयर 5? क्या यहाँ पे 5 है? No, sir. No. So we will write for any natural number n, if it have or it is ending with a digit 0, then it must have 2 and 5 both as a prime factorization number. दोनों के दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में होने चाहिए, तो 2 भी होने चाहिए, 5 भी होने चाहिए। सर यहाँ पे 2 है, 2 इज अवेलेबल हेयर बट 5 इज नॉट देयर, 5 यहाँ पे नहीं। हेंस 6 raised to n cannot be end with the digit 0. क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, कोई मुझे बताएगा 4 raised to n, it will 2 end with raised to 0 n or into no? 2 raised to n. हाँ, तो ये डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं? No, sir. No. सर 4 का two और प्राइम 5 दोनों ही है। फैक्टराइजेशन जो है 2 स्क्वायर है, एक ही प्राइम नंबर है 2 है, यहाँ पे 5 नहीं है, Yes. सो इट विल आल्सो नॉट एंड विद द नेचुरल नंबर n. 5 is not a factor. नो, ओके। अब ये चीज है, कंपोजिट नंबर तो आपको पता ही होगा, है ना? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? सर ऐसे नंबर And जो जो नंबर जिसका डिविजिबल 2 हो। देखो ध्यान से देखना, सर ये 5 है और यहाँ पे 3 है, 5 and 3 आर कंपोजिट नंबर, यस और नो? Yes. नो सर 5 No, नो, sir. these are not the composite numbers. Okay. Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं, अब we can divide. Yes, There sir. is some common factor. Okay, 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 is a common factor between them, so this is a composite number. नंबर के बीच में कुछ कॉमन नंबर मुझे मिल जाए, then we will say that these are the composite number. Okay, so इस नंबर में और इस नंबर में पहचानिए और बताइए कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, अगर है तो क्यों? सर सबको इंटू करेंगे सर क्या? क्योंकि बोलिए। सर क्योंकि हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर मिलेगा उसके हाँ। फैक्टर्स वो नंबर और 1 से ज्यादा होंगे तो उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो कंपोजिट। ओके, सो सिंपली कि सर मैं नंबर्स को मल्टीपल कर लेता हूँ, मल्टीपल करने के बाद इन दोनों में मैं कुछ चेक करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कि इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं है ना? समझ में आ रहा है सभी को? सर एक बार सॉल्व करें। ओके, अगर मैं इन नंबर्स को मल्टीपल करता हूँ, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन? देखो उससे बेटर क्या रहेगा कि देखो यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है 13 और यहाँ पर क्या है 13। क्या मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। तो कैन वी राइट 7 into 11 plus 1? इन दोनों से 13 कॉमन लिया तो 7 into 11 बचे 1014. और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो 1 बचे। सो दिस इज 13 into 11 7 जा 77, 77 plus 1 78। तो इस नंबर का प्रोडक्ट 13 into 78 आ रहा है। नाउ इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन है? देख लो, 5 कॉमन ले सकते हैं क्या 5 को? तो 5 को कॉमन ले लिया, तो 5 को कॉमन लेने के बाद 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस, सर यहाँ से 5 कॉमन लिया था तो 1 आया था। सो दिस इज 5 into
7 इंटू 6 कीजिए, 4 से मल्टीपल कीजिए, 3 से मल्टीपल कीजिए, 2 से मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल कीजिए। 7 6 जा 42, 42 इंटू 4 8 168, 168 इंटू 3 8 3 जा 24, So 1008. this is 504, 504 into 2, 2 से मल्टीपल करें 1008 आ रहा है। Yes, sir. सो 1008 और ये 1 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, ये 1009 9. है ना। हाँ. अब सर ऐसे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना इजीएस्ट वे हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 इज देयर। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएंगे। देखो 78 है, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 39, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, है ना। सो 2 इंटू 3 इंटू 13 लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख लिया। सर 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 का स्क्वायर कर लो, यहाँ से 13 हटा दो, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का। Yes. ओके, दूसरे वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सर ये तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 1009 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? नो। No, 3 sir. 3 से है क्या? No, sir. 4 से? 4 से तो होगा नहीं। No. 13 से देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर 13 है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग 13। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है? सर 1009 अपने से ही जाएगा। 1009 अपने से डिविजिबल होगा ऐसा? ओके, थोड़ा कैलकुलेशन अवॉइड करना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, नॉट एन इशू। आप इसको आराम से मल्टीपल कर लेना, ऐड कर लेना। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा इसलिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर, सो देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन बिटवीन देम। ओके, सो आराम से मल्टीप्लिकेशन करना, उसे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या आ रहा है। किसको टास्क दूं ये? मनसा? मनसा? सर ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये Okay, मल्टीपल sir. करके आप रखो कितने मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं, एंड उसके आप फैक्टर फाइंड आउट करके रखो, ठीक है, क्योंकि हमें रिवीजन करना है ना, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। सेकंड वन इज इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। सो इरेशनल नंबर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये इरेशनल नंबर है, ये क्लियर है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। व्हाई स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इरेशनल नंबर? सर क्योंकि 15 है। नहीं सर। एज, देखो सिंपली आप जवाब दोगे एज 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, Where? है ना? यस सर। ये वाला वर्ड ध्यान में रखना, एज 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज इरेशनल नंबर। अगर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो आप लोगों ने तुरंत बोला था नहीं ये रेशनल नंबर है, बिकॉज 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। Perfect. ये किसका स्क्वायर है? 9 का, है ना। सो सर ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, ये यहाँ पर एक सिंबल यूज किया गया है पाई। ओके, पाई को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, पाई को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, जो ज्योमेट्री में हम लोग यूज किया करते हैं। इसी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है 22/7। 7. ये वाला बताओ मुझे रेशनल है या इरेशनल है, जो सर्कल किया है मैंने?
सर वो इरेशनल है क्यों? सर, क्योंकि आगे भी और नंबर्स आते हैं ना। नहीं, मैंने तो जस्ट आपसे पूछा 3.14 इट इज रेशनल और इरेशनल। सर एक पर्टिकुलरली ये तो रैशनली। हाँ, पार्टिकुलरली ये रेशनल नंबर है। अगर कोई मुझसे पाई पूछेगा देन वी विल से दैट पाई इज इरेशनल नंबर। बट मुझसे कोई पूछेगा 3.14 वी विल से सर इट इज रेशनल नंबर। मुझसे कोई पूछेगा 22/7 वी विल से इट इज रेशनल नंबर। बट पाई इज इरेशनल नंबर। ये जो इरेशनल नंबर पाई है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, 22/7 है। दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, इज देयर एनी स्पेसिफिक नेम of this type of irrational number because it is something different than √2 √3। आपने जो √2 √3 देखा वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। there is not the terms like that one, so there should be a specific name of this type of irrational number। anyone? एक और irrational नंबर आपको देता हूं, देखो ये भी irrational नंबर है e। इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे 2.718। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718। इट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सो व्हाट इज द एक्चुअली वी विल से दिस टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। हम इन इस टाइप के इरेशनल नंबर को क्या बोलेंगे? सुना है कभी किसी ने? तो बोलो यस, नहीं तो फिर हम तुरंत इसको एक्सप्लेनेशन देंगे क्योंकि रिवीजन है नहीं भैया। सर, नहीं सुना है। सो जस्ट आप लोग लिख लीजिए इस वर्ड को, ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। और ये नंबर्स हैं पाई एंड ई। पाई एंड ई, दीज आर ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर जो नेचुरल नंबर से लिंक नहीं, नेचुरल नंबर से लिंक नहीं। नाउ सर ये वाला नंबर इरेशनल क्यों हुआ? व्हाई दिस नंबर इज इरेशनल? एनीवन? सो बताए व्हाई दिस इज इरेशनल नंबर। सर क्योंकि ना यहाँ पे एक पैटर्न में नहीं चल रहा है ये। अच्छा, पैटर्न पे नहीं चल रहा है। हमने बोला था कि अगर मुझे कुछ ऐसा दिख जाए, लेट से 1.12 पे बार दिख जाए, मतलब 1 2 ऐसा रिपीट करता हुआ दिख जाए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि ये इरेशनल नंबर का ये रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। अगर ऐसा रिपीटेशन नहीं दिखता है देन इट विल बी इरेशनल। नाउ सर 10, सर क्या 10 फिर से रिपीट कर रहा है? नहीं, अब तो 11 आ गया। अच्छा, क्या 101 रिपीट कर रहा है? 101 101, अब यहाँ पर 110 हो गया। सर वो भी रिपीट नहीं कर रहा है। क्या 1011 रिपीट कर रहा है? नो सर, ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब अब हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करके देख लिए कि सर ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और जब भी आपसे कोई बात करेगा व्हाट इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर से। इट इज इरेशनल नंबर, है ना। नॉन रिपीटिंग, नॉन रीअकरिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रीअकरिंग। ओके, एक ही टाइप के टर्म्स बार बार अकर नहीं होंगे ना। अब एक फंडामेंटल है यहाँ पर, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज a1 + 2/3, what you will say, it is rational or irrational? Sir, rational. This is a rational number, this is also a rational number, so its sum, that is a 5/3, it is also a rational number, है ना। दो रेशनल नंबर का सम ऑलवेज रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल नंबर का सम ऑलवेज रेशनल नंबर होंगे। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, it will be always irrational. Sir, why? Let's say there is a rational number 2, there is a irrational number √3। सर इन दोनों का एडिशन जब हम लोग करेंगे, जैसे √3 की जो वैल्यूज होती है 1.73 समथिंग 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 समथिंग, इस तरीके से नॉन रिपीटिंग नॉन रीऑकरिंग टाइप के टर्म्स होते हैं। ओके,
ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें अगर मैं सर 2 ऐड कर दूं देन दिस विल बिकम 3, बट इट्स टर्म्स विल नॉट एंड। ये कहीं पे एंड नहीं होने वाला है, ना ही रिपीट करने वाला है, तो सर ऑब्वियसली इट विल बी इरेशनल नंबर। तो बेसिक फंडामेंटल इज ओनली सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जब भी आपसे पूछेगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सम, तो आप इरेशनल नंबर बोलोगे। अच्छा, एक छोटा सा फंडामेंटल अगले पेज पे जाने के पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे। लेट सपोज देयर इज अ irrational number, there is another irrational number, so what will be its sum? सर इरेशनल ही होगा। क्या ऑलवेज irrational होगा? नहीं सर, ऑलवेज नहीं होगा सर। तो क्या बोलूं मैं इसको, रेशनल बोलूं? Sometimes rational, sometimes irrational. वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। सर लेट्स से वन irrational number is √3, another irrational number is minus of √3. if I will add, both will get cancel out and we are getting 0. Sir, Yes. 0 is a rational number. 0 is a rational number. Let's say I am taking a irrational number √3, another irrational number as √2. सर अब इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, सो व्हाट वी विल से दिस इज इरेशनल नंबर। सो सम ऑफ 2 irrational number may be a rational number और may be an irrational number। वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इन फंडामेंटल्स को भी हमें ध्यान में रखने हैं। नाउ जिस तरीके से मैंने सम बताया उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा कि सर 2 इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर। Let's say √2 is a irrational number. √2 is actually a irrational number, and another irrational number I am taking again √2. What will be its multiplication? सर 2 सर। 2 is rational or irrational? रैशनल सर। Sir, it is rational number. Very good. Now I am taking a irrational number as √2, another irrational number as √3. What will be the product? √6 सर। √6. Okay. So √6 is a perfect square or not? नो सर। No. So we will just write √6 here. So √6 is irrational or rational? इरेशनल सर। Sir, it is irrational. So now you can observe कि 2 irrational number का product rational भी हो सकता है and 2 irrational number का product irrational भी हो सकता है. So that's why we are saying may or may not be an irrational number. वो irrational number हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस चैप्टर पे 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं that is based on fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहते हैं, इन चीजों को मुझे समझाने की जरूरत है। ओके, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग अ प्राइम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय p. लेट देयर इज अ प्राइम नंबर p, जस्ट लाइक सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे प्राइम नंबर हो सकते हैं। नाउ दे आर सेइंग दैट दिस प्राइम नंबर p डिवाइड्स एनी स्क्वायर ऑफ नंबर, a स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहा है। सर लेट्स से आई एम टेकिंग p इज इक्वल टू 3। आई एम सेइंग कि सर 3 जो है वो 81 को डिवाइड करता है। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 सर। Sir, 9. सो वी कैन से 9 स्क्वायर। अगर 3 जो है वो 9 स्क्वायर को डिवाइड करता हो तो क्या ये 3 9 को भी डिवाइड करेगा? ये नेसेसिटी है। सर यस, बिकॉज वी कैन राइट दिस 9 स्क्वायर एज 9 into 9। और सर ये प्राइम नंबर अगर इसको डिवाइड करता है तो इसके दोनों पार्ट को भी डिवाइड करेगा। इट मीन सर एक वाला पार्ट को भी डिवाइड करेगा। तो सेम थिंग यहाँ पर हुई, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। और इस थ्योरम का यूज करके मैं किसी भी नंबर को वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है मैं ये प्रूफ कर पाऊंगा। ओके, सो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व कि मैं किन चीजों को यहाँ पर लिख रहा हूँ। जस्ट मैं पहले थ्योरम का प्रूफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आफ्टर आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स से कि p डिवाइड्स a स्क्वायर दिया हुआ था, तो मैंने बोल लिया कि एक नंबर ले लीजिए a
एंड उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसा लिख लीजिए P1 P2 P3 P4 अप टू Pn। ओके, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब जैसे कि अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा सर देयर इज 6 देयर इज 3, सो मैं लिख रहा हूँ 2 into 2 into 3, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, बोथ आर सेम। सो हो सकता है इनमें से कुछ नंबर जो है वो नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट हो, मतलब वो अलग अलग हो, ये कोई जरूरी नहीं। नाउ अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो सर P1 P2 अप टू Pn, P1 P2 अप टू Pn, ये सब मल्टीपल हो जाएंगे, तो इन सबके प्राइम नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने बोला कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सर दिस इज जस्ट अ प्राइम फैक्टराइजेशन, इट मींस अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और मैं बोलूं कि a स्क्वायर को कोई P डिवाइड कर रहा है, इट मींस इसी प्राइम नंबर में से वो प्राइम नंबर ये होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 13 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि सर 13 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 13 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 13 ओनली। मैंने बोला 26 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 into 13, मैं बोलूंगा कि सर आइदर 13 डिवाइड कर रहा है और आइदर 2 डिवाइड कर रहा है, इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई नंबर तो इसको डिवाइड करेगा। So that's why we are saying here कि if P is dividing P a square, P is dividing a square, then definitely we can say कि P is one of these number. P जो है वो इनमें से ही कोई नंबर होगा। So A को मैं P1 P2 Pn लिखूंगा तो मैं बोलूंगा कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। That is basic fundamental कि सर ये फंडामेंटल एरिथमेटिक थ्योरम है और समटाइम्स ये प्रूफ की तरह पूछे जा सकते हैं। नाउ अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हाउ वी प्रूव दिस वन, कैसे प्रूव किया जाता है ये? जिन लोगों ने भी क्लास में कुछ अटेंड किया हो, कुछ प्रूव किया हो। सर हाँ सर पहले हम ना वो कोप्राइम मान के फिर वो सब पूरी प्रोसेस करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट्स से रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया ऐसा कि ये रेशनल नंबर है, हेंस किसी भी रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। लेट a and b are co-primes, a and b are co-primes such that p/q is equal to a/b। co-prime किसको बोलते हैं? What is co-prime? Consecutive prime numbers. No. What is co-prime? सर who मतलब the numbers which have only one common factor. Okay, which have only one as a common factor. Sorry, one as a common factor. Only one as a common factor. Okay, so if I'm asking you 2 and 5, so we will say yes, these are co-prime number, क्योंकि 2 and 5 को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है और वो नंबर क्या है? 1। so that's why 2 and 5 are co-prime number। अगर मैं लिखूं 10/4, तो सर 10 and 4 are not co-prime number because these numbers are divisible by 1 and 2 both। They तो have सर 2 in common. हाँ, 2 कॉमन में कितने आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल से दीज आर नॉट को-प्राइम। तो मैंने जो नंबर्स दिए हुए थे उसको सबसे पहले मैंने को-प्राइम में कन्वर्ट कर लिया। तो को-प्राइम का मतलब होगा देयर विल बी नो एनी कॉमन मल्टीपल अदर देन 1, मतलब अब बी ए को डिवाइड नहीं कर सकता है इंटीजर के टर्म्स में। ओके, तो सर मैं इसी टर्म्स को ऐसा लिखूंगा रूट 5 इज इक्वल टू a/b। रूट 5 is equal to a/b, so we can write it as root 5b is equal to a। now a squaring both side। देखो ध्यान में रखना, फंडामेंटल वाला एरिथमेटिक वाला जो थ्योरम था वो a नंबर जो थे उसका स्क्वायर करके p से डिवाइड किया गया था, है ना? ये p डिवाइड्स
a square, then p divides a. यही है ना थ्योरम? Yes, sir. तो हमें स्क्वायर करना होगा क्योंकि मुझे स्क्वायरिंग नंबर चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेता हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, देन वी कैन राइट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर आप सोचिए कि किसी नंबर a स्क्वायर को मैं कुछ ऐसा लिखता हूं 5 इंटू बी स्क्वायर, कैन वी से a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5? सोचो और समझो, जवाब दो। Yes, sir. अरे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 16 को कुछ ऐसा लिखता हूँ 2 इंटू 8, कैन वी से 16 इज डिविजिबल बाई 2? Yes, sir. Yes, So sir. definitely if a square is written as 5 into b square, we can say a square is divisible by 5. a square को मैं 5 से divide कर सकता हूँ. So just Yes, I sir. am writing here 5 divides b square. 5 divides a square. 5 divides a square. Okay, b square नहीं, a square. 5 divides a square. अब हम लोग लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा भी लिखेंगे 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स a, ऐसा लिख सकते हैं। यस, अगर 5 a को डिवाइड करता है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 5 टाइम्स एनी कांस्टेंट c? Yes, sir. अगर a की वैल्यूज 5c के इक्वल हो और ये जो रिलेशन हमने बना रखा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं बोलूंगा कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, एंड 5c का होल स्क्वायर इट मींस 25c स्क्वायर। Yes, sir. ओके, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो, वी कैन राइट b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स c स्क्वायर। आवाज आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप लोग को Yes, अंडरस्टैंडिंग sir. हो रही है। Yes, Sir, sir. yes, sir. So definitely we can say 5 divides b square. So we cannot say 5 divides b square. So 5 also divide b. अब हम Yes. लोगों ने एक बार स्टेटमेंट लिखा था कि 5 डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? a को। A फिर को हमने sir. लिखा था 5 डिवाइड करता है, अभी किसको लिखा 5 डिवाइड करता है? B को sir. b को। लेकिन हमने a और b को क्या बोला था? Not equal to 0. नहीं, बट a एंड b आर को Prime प्राइम। number. हम लोगों ने इन दोनों को प्राइम नंबर बोला था। इट मींस इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो नंबर है ओनली क्या है? 1 है। और अभी जो हमने यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है? इसको डिवाइड करने वाला नंबर 5 भी है। Yes, sir. तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ यह स्टेटमेंट या नहीं? को प्राइम जब आपने एज्यूम किया था, इसका मतलब हुआ देयर इज ओनली वन डिवाइजर दैट इज 1, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर एक और डिवाइजर है, वो कौन सा है? 5। 5. Yes, sir. तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। अगर कॉन्ट्राडिक्ट किया था तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गया? वो गलत प्रूव हो गया। गलत प्रूफ हो गया। हेंस इट्स कॉन्ट्राडिक्ट। इट्स कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। और अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर। रेशनल हमने एज्यूम किया था इसलिए मैंने इसको इरेशनल नंबर लिख लिया। अब देखो कि इसी टाइप के सेम एक क्वेश्चन से कुछ नहीं पता चलेगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? सो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को मैं एक और ले लेता हूं। अब इस बार थोड़े जोश में रहना। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट √2 ओनली। सो इसको मैं p/q लिख लूं, उसके बाद क्या लिख लेंगे?
A by B। आप यहाँ पर A और B के बारे में क्या लिखने वाले हो, बोलिए। A and B are co-primes. वेरी गुड। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे A एंड B जो है वो को प्राइम नंबर है। देयर विल बी ओनली डिविजिबल नंबर दैट इज 1। 1 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, को प्राइम। मैंने यहाँ पर एजम्पशंस में क्या लिखा है, लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। ओके, अब इसके बाद का स्टेप जो है रूट 2 इज इक्वल टू ए बी। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रूट 2 बी इज इक्वल टू ए लिखूंगा। अब इसके बाद का स्टेप आप बताओगे क्या करूं। सर उनका स्क्वायर निकाल। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सर वी विल राइट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। सर 2 can divide a, sir. 2 divide a square, we will write 2 divides A square. a square। so prime factorization यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे by using fundamental theorem of arithmetic। 2 divides, 2 किसको डिवाइड करेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, a से सर, a को सर। a को डिवाइड करेगा। अगर a को डिवाइड करता है तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, अब देखा, स्टेप याद होना चाहिए। अगर 2 a को डिवाइड करता हो तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 2 times c। है ना, 2 टाइम्स कांस्टेंट। तो 2c मैंने लिख लिया। अब ये जो 2c निकल कर आया है वो मैं स्क्वायर वाले रिलेशन में पुट कर लूंगा। स्क्वायर वाले रिलेशन में पुट करो तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 2c पुट करनी है, उसका स्क्वायर कर लेना है। सो वी विल राइट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स c स्क्वायर। नाउ व्हाट यू विल राइट, अब क्या लिखोगे। सर 2 divides b square और 2 वेरी divides गुड, b। बहुत अच्छे बहुत अच्छे सर। वी विल राइट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या लिखोगे, 2 divides b। 2 डिवाइड्स b। तो 2 डिवाइड्स b भी लिख लिया। अब यहाँ पर आपने लिखा था 2a को डिवाइड करता है, यहाँ पर आपने लिखा 2b को डिवाइड लिखता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स a and b both। And that contradicts the fact that A and B are but co-primes. but a and b are co-prime। a and b जो हैं co-prime है। और अगर a and b co-prime है और 2 को आप डिवीजन भी बोलते हो तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ इट मींस मेरा स्टार्टिंग का एग्जाम्पशंस क्या है वो रॉन्ग है। देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, दूसरा एक क्वेश्चंस आता है जिसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो डिफिकल्ट लगता है, वो डिफिकल्ट होता नहीं। अब वो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं सर, दैट इज ऑफ टाइप दिस वन। वो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देख लेना समझ लेना, फिर मैं आपको बता दूंगा। मैंने ऐसे स्टेप स्टार्ट किया, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। इसको मैंने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। सो वी विल राइट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। आप ऐसा बोल सकते हो कि a/b के इक्वल है क्योंकि रेशनल नंबर है, जहां पर मैं बोलूंगा कि a एंड b जो है वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे, को-प्राइम सर, इंटीजर को। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं तो p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यस एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, है ना। आप यहाँ पर p एंड q लिखना है तो आप p एंड q भी लिख सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। सो 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। so by taking LCM you will get p - 3q upon q। आपको बताना है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इस 2 को यहाँ पे ला सकता हूँ,
Yes. Yes, sir. So we will write √5 is equal to P minus 3Q divided by 2Q. 2Q ना? Yes, sir. 2Q. Sorry. ओके अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर P एंड Q ये सब के सब इंटीजर को बिलोंग करते हों तो ये क्या होगा, इंटीजर और नॉन इंटीजर? इंटीजर ही होंगे ना, P एंड Q इंटीजर हैं तो मैं P माइनस 3Q क्या बोलूंगा, इंटीजर बोलूंगा। और ये भी क्या है, Yes, sir. इंटीजर ही है। Very yes, sir. इंटीजर, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? No, sir. बिकॉज Q इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस कैन Zero. नॉट बी 0, वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है, सो व्हाट यू विल से अबाउट दिस नंबर, दिस इज रेशनल और इरेशनल? Sir, this number is irrational. Irrational, sir. Sorry. नहीं भैया, अगर न्यूमरेटर में इंटीजर हो, अगर न्यूमरेटर में इंटीजर हो एंड डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो, अगर न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर का इंटीजर नॉट इक्वल टू 0, कोई भी नंबर ले लो आप, लेट्स से सर न्यूमरेटर का इंटीजर मैं 3 ले लेता हूँ, डिनोमिनेटर का इंटीजर 7 ले लेता हूँ, व्हाट विल बी दिस नंबर? हाँ सर, ये रैशनल हुआ, बट मेरे को लगा आप उससे पूरा ही पूछ रहे हो, मतलब √5 ऐसे। ओके नहीं, सो जस्ट मैंने इस नंबर के बारे में पूछा। अब हम लोग वो लिखेंगे रैशनल है। P minus 3Q upon 2Q is rational number. √5 is an irrational number. तो क्या एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? No, sir. No. So next step we will write an irrational number and rational number cannot be equal. Irrational number cannot be equal. ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, √5 इज इक्वल टू, ध्यान में है? Yes, sir. Yes, अब हम sir. लोग क्या बोल रहे हैं, हेंस कॉन्ट्राडिक्ट, The Hence- fact that √5 is irrational. हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हमने क्या एज्यूम किया था, पहले हमने एज्यूम किया था 3 + 2 √5 के बारे में, हमने इस नंबर के बारे में एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था इसके बारे में? रेशनल नंबर है और Rational उसको number. हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया। सो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर दिस इज Irrational irrational number. number। तो Hence प्रीवियस proof. वाले से तो ये इजी है ना, Yes, sir. है ना? सो वैसे दोनों में से कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट 2-3 बार लिख कर अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब हम खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे देन डेफिनेटली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ये पता है सबको? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर Yes. कोई भी रेशनल नंबर जो है, अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में मैं लिखना चाहूं और वो टर्मिनेट करता हो, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए उसमें ऐसे फैक्टर होने चाहिए। अगर नहीं है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। जस्ट आई एम आस्किंग 1/3, सो यू विल से सर 0.33333, ये टर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा। टर्मिनेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो Q है वो 3 है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज ओनली 3। अगर मुझे इस फॉर्मेट में दिख जाए तो वो टर्मिनेट करेगा, वरना टर्मिनेट नहीं करेगा। आपको यही डिसीजन लेकर बताने। सो सर कुछ रेशनल नंबर यहाँ पे दिए हुए होंगे और आपको उससे डिसीजन लेना है। सो जस्ट लेट मी नो, ये है 17/8, दिस विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? Sir, non-terminating. गलत। देखो Sir, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं? 8. 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3. 3। अगर मैं इसको 5/3 से मल्टीपल कर लूं
तो सर मुझे 5/3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीपल कर लेना चाहिए। मेरी बातों को समझिए। अब 2/3 5/3 से मल्टीपल करोगे तो 2 into 5 कितने होंगे 10 एंड 10 पे 10, पावर कितने होंगे 3. सो डिनोमिनेटर में अब आपको बचेगा 10/3। अब इन दोनों नंबर का जब आप प्रोडक्ट करोगे 10/3 का मतलब हुआ 1000, तो 1000 से डिवीजन करने के बाद वो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे? सर फिर टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग हुआ, तो हम लोग टर्मिनेटिंग बोलने वाले हैं इसको। ओके, इस नंबर के बारे में बताओ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान में रखना, जस्ट इतना समझना कि सर मुझे 2m एंड 5n, m और n की जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। m और n क्या है, ये सब इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब सर मुझे 2m भी रहेगा तब पर भी टर्मिनेट होगा, 5n रहेंगे तब पर भी टर्मिनेट होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट में होंगे तब पर भी टर्मिनेट करेंगे, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो 3125 जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सबसे पहले बताइए किससे डिवाइड होगा? 5 से कर लें? यस ये सर। तो 5 से ही होगा। 6 25, 5 से कर लें सर 125, फिर से 5 से कर लें 25, फिर से 5 से कर लें 5। सो वी कैन राइट दिस नंबर एज 5/5। Yes, sir. अगर मैं इसको 2/5 से मल्टीपल कर लूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, क्या बोलोगे, टर्मिनेट हो गया? Yes, sir. ये समझ में ना तो सर आपके मन में आ रहा होगा कोई ऐसा तो एग्जांपल बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई ऐसा तो एग्जांपल बताओ जो नॉन टर्मिनेटिंग। चलो ये वाला एग्जांपल पे आ जाइए, 343। व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर? So 7/3. 7 7 7, so this is 7/3। is this in format of 2/m 5/n? क्या ये वैसे फॉर्मेट में है? No, sir. नो, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, और ये सब क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। ये सब क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। अब मुझे ये वाला बताएंगे जरा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सर Sir, नॉन टर्मिनेटिंग। non-terminating, sir. नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज ऑफ 7/5। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। Sir, terminating, sir. हाँ, ये भी ध्यान में रखना है मुझे। अब यहाँ पर जो आपने आंसर दिया ना, इन सब चीजों पे भी थोड़ी थोड़ी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस सर। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। सो वी विल चेक फॉर 2/5। यहाँ पर जो नंबर है वो कैसा है, 2/m 2/n 5/n के फॉर्मेट में है ना। 5/1 है, 2/0 है। सो वी विल से सर दिस विल बी टर्मिनेटिंग। सो हम 15 से आंसर नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ कॉमन है जो कैंसिल आउट होता है तो वो कैंसिल आउट भी करना है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? Sir, terminating. देखिए 77 को सर मैं लिख सकता हूँ 11 into 7, एंड सर 210 को लिख सकता हूँ हम लोग 3 2 से ही पहले डिवाइड कर लो, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 105. 10, हाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 105 आएगा ना। Yes, sir. 105 बोला. 105 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 3 से डिवाइड 3 कर से. सकते हैं, 5 Yes, से sir. डिवाइड कर सकते हैं क्या? 3 Yes, से sir. डिवाइड कर सकते हैं। चलो 105 को 3 से कैसे डिवाइड करोगे? Sir, 35. 35, और उसके बाद 5 एंड उसके बाद 7, ऐसा आ गया। Yes, sir. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में?
यस सर 7 हो रहा है। ओके 7 हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। क्या डिनोमिनेटर से इस 3 को रिमूव कर पाओगे? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या 3 न्यूमरेटर से? नहीं सर। नहीं, इट मींस ये 2m 5n के फॉर्मेट में नहीं है। नहीं है। नहीं है तो ये हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग repeating decimal. डेसिमल। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर 35/50, इसके बारे में आंसर दे दो। सर टर्मिनेटिंग होगा सर। सर सबसे पहले तो मैं 35 को लिख सकता हूँ 5 7 जा 35 एंड ये 50 को लिख सकता हूँ 2 into 5 into 5 5, है ना? सर कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या? 5 and 5। 5 and 5 कैंसिल आउट हो गया। सो अगेन वी आर ऑब्जर्विंग 2 into 5 2 raised to m 5 raised to n के फॉर्मेट में है। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये सब क्लियर हो गए सबको? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। Yes, यस sir. सर। ओके गुड। सो इनमें से किस नंबर को टर्मिनेट करना पॉसिबल है? क्या ये प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के टर्म्स में लिखना मतलब टर्मिनेट करना है ना? प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के Sir, टर्म्स में one- लिखना Sir, तो ये first वाला टर्मिनेट, तो terminating है. फर्स्ट first वाला वाला तो terminating टर्मिनेटिंग है ही, क्योंकि उसमें तो कहीं पे डॉट 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 दिख नहीं रहा या फिर बार का सिंबल नहीं दिख रहा है। तो सर यस ये होगा। ये वाला ऑब्जर्व करना जरा, Irrational है ये तो sir. ये इरेशनल है क्योंकि सर सेम टाइप के टर्म्स मुझे रिपीट करते हुए दिख नहीं रहे। ये वाला सर नॉन टर्मिनेटिंग है सर, क्योंकि वो Terminating, repeating. बार पर है। टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा वाला है ये? Repeating. रेशनल है या इरेशनल है? Sir, सर rational है. रेशनल है। ओके दिस इज रेशनल नंबर, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। ये बार का मतलब हुआ इतना ज्यादा डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद कौन सा डिजिट आएगा? कोई बताएगा मुझे 9 के बाद? 10 sir. इस 9 के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 10 सर। और सर पर इस नंबर में वापस ये हुआ ना 1 2 3 4 वन ही 5 6 आएगा 7 अगर सर। हमारे पास फिर से 43.25 के ऊपर बार हो, इसका मतलब होगा सर मैं 43.25 25 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो इतने बड़े नंबर के ऊपर बार लगाया हुआ है। सो जब हम लोग लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सर फिर से इस 1 डिजिट 2 के 3 बाद 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही रिपीट करता हुआ जाएगा। सो 9 के बाद मैं पूछ रहा था कौन सा डिजिट आएगा, तो आप लोग बोल रहे थे 10। चलो कोई नहीं, होते हैं समटाइम, मुझसे भी गलतियां होती है। रियल नंबर को हमने फिनिश किया। क्या आप लोगों के पास इसका वर्कशीट है प्रैक्टिस करने के लिए? यस सर. वो जो सर नो आपने सर। एक बार होमवर्क दिया था ना तो हाँ, वो हाँ। है. मैंने No, होमवर्क किया था। सर आपने नहीं, सॉरी सॉरी, वो पहले आने सर ने दिया होगा. तो हाँ, वो हाँ। क्वेश्चन शीट है, फिर भी अगर हम्म। और कोई मटेरियल है तो आप भेज दीजिए. हाँ ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंशन थे क्या कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो? सर मे भी हो, अभी चेक नहीं किया सर मैंने. एक्चुअली कुछ ठीक है, सर चलो मैं ज्वाइन आपको नहीं भी हुए सर, वो चेक क्वेश्चंस करते वाला हैं। पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। जस्ट आप उससे क्वेश्चन चेक करोगे, आप उससे सॉल्यूशन चेक नहीं करोगे। हाँ? पहले आप उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, नहीं सॉल्व हो रहे होंगे तो आप उससे सॉल्यूशन चेक करोगे, क्योंकि उस पीडीएफ में क्वेश्चन एंड आंसर दोनों है। ओके सर। ओके ओके थैंक सर. यू। ओके सर। सबको समझ में आया? रिवीजन अच्छा लगा? यस सर। सर बहुत सही अच्छा, था. मनसा से मैं पूछ रहा था एक क्वेश्चन के बारे में, वो चेक ही हाँ. कर लेते हैं। कौन सा है? ये हाँ सर हूँ मैं. ओके सॉल्व किया। सर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में क्लास में बिजी हो गई. ओके चलो ठीक है कोई पर नहीं। मैंने 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, लाइक जो फर्स्ट वाला नंबर है ना 7 हाँ, 8 हाँ, 11 तो 13 वाला. चलो देख लेना इन दोनों में कंपोजिट नंबर ये है यानी डिविजिबल हो पा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर चेक करना, मुझे बता देना कि सर लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर ये आ रहा है। ओके
जस्ट टाइम से ओवर हो रहा है ऑलरेडी, सो फिनिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लेक्चर को। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. Hi, sir. बाय बाय, बाय सर। बाय बाय।